Assalamu alaikum, dear students. In continuation with our lectures about contemporary South Asia, our today's topic is SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, which is the representative organization or association of South Asian region. In this regard, we have to discuss the historical background, the objectives, and the role of the SAARC. हमें पूरी तरह सारक का एक जायज़ा लेना होगा कि तारीख़ी तौर ये एसोसिएशन कब बनी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए बनी है, इसके मकासद क्या हैं और आज तक साउथ एशियन रीजन की तरक्की के लिए, चाहे वो तरक्की इकोनॉमिक हो या समाजी हो, और कॉपरेशन के हवाले से इसका रोल क्या रहा है. So it is imperative to know that in contemporary world, the role of regional organizations and associations as intergovernmental agencies, intergovernmental organizations has greatly increased. As we are living in a multipolar world, and in this multipolar setting, these organizations, intergovernmental organizations, have great political and economic significance. तो इस वक्त हमारी दुनिया में जो प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनमें ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, आसियान है, अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग है और यूरोपियन यूनियन है. तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में सारक का भी अपना एक ख़ास मकाम है. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है अपने कंसर्नड रीजन्स के ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फ़रोग देने के लिए. तो सारक भी साउथ एशियन रीजन के लिए इसी मॉडल पर बनाई गई थी. सार्क इज़ the organization of South Asian nations. Its members are India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh and Afghanistan. एक बार फिर दोहराते हैं. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान. So in fact there are only 7 founding members of SAARC. Afghanistan was included in it in 2007 and became the 8th member of SAARC. असल में SAARC के सिर्फ 7 मेंबर्स थे, तो अफ़गानिस्तान को 2007 में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, तो अफ़गानिस्तान अब 8वां मेंबर है. The idea of a regional organization for cooperation, socio-cultural development, economic progress, emphasizing self-reliance for South Asia was first put forward by Mr. Ziaur Rahman, the former president of Bangladesh in 1980s. तो ये जो तसव्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है सारक का, ये 80s में डेवलप हुआ. तो सबसे ज़्यादा रोल जो इसमें प्ले किया है वो है मिस्टर ज़ियाउर रहमान साहब, जो उन दिनों प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के. तो उसने ये तसव्वुर पेश किया कि साउथ एशिया में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कॉपरेशन को, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट को, सेल्फ रिलायंस को फ़रोग दे. तो इस सिलसिले में बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए. तो फाइनली जब साउथ एशियन नेशंस के लीडर्स के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप हुआ और ऑफिशियली सार्क दिसंबर 1985 में फिर वजूद में आ गई. ऑफिशियली सार्क वाज फॉर्मड इन December 1985 in Dhaka.
the capital of Bangladesh. First summit was held in Dhaka, which was attended by 7 heads of the states. The headquarters of SAARC is in Kathmandu, Nepal. The secretariat of SAARC was created in Kathmandu in 1987. तो इस तरीके से SAARC एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए रीजनल एसोसिएशन वजूद में आ गई। और इस वक्त अगर हम देखें तो SAARC दुनिया के 3% एरिया को और 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और $2.9 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी का साझेदार है, ये हिस्सेदार है। SAARC represents 3% of the world area, 21% of the world population, and $2.9 trillion of the global economy. Dear students, so far as the principles of SAARC are concerned, like other organizations, SAARC is also based on the principles of respect for the sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in internal affairs of other states, and mutual benefit. These are the principles of SAARC. Second, regional cooperation shall not be a substitute to bilateral and multilateral cooperation. यानी साउथ एशिया के देश एक दूसरे की सॉवरेनिटी को और सरहदों की हिफाजत करेंगे, आदर करेंगे, एक दूसरे को बराबर मानेंगे और सियासी एतबार से ख़ुद मुख्तार मानेंगे, दूसरे ममालिक की सियासत में बेजा मुदाखलत नहीं करेंगे और ये कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही काम करेंगे। और ये भी कि ये जो रीजनल कॉपरेशन है ये कोई सबस्टिट्यूट नहीं होगा बायलैटरल और मल्टीलैटरल कॉपरेशन का, यानी ममालिक आज़ाद होंगे, वो बाकी देशों के साथ संबंध बढ़ा भी सकते हैं और बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ये 2 कॉपरेशंस साथ साथ चल सकते हैं, तो SAARC उसमें कोई अड़चन नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, द मेन पर्पस ऑफ द एसोसिएशन is the progress of economic and social development in member countries through joint action in agreed areas of cooperation. And the agreed areas of cooperation are human resources development and tourism, agriculture and rural development, environment, natural disasters and biotechnology, economic trade and finance, social affairs, information and poverty alleviation, energy, transport, science and technology, education, security and culture। यानी कि इन एरियाज़ को एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन आइडेंटिफाई किया गया है कि इन एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा और इन्हीं एरियाज़ पे फोकस करके रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज़म, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, नेचुरल डिज़ास्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी का खात्मा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर। अब इन एरियाज़ को नज़र में रखते हुए आइए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं SAARC के। SAARC हासिल क्या करना चाहता है। What are the objectives of SAARC? The objectives are to promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life. 1. Second, to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide
all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials. Third, to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia. यानी साउथ एशियन नेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए और खुद इन्हिसारी के लिए तैयार किया जाए. फोर्थ इज टू एक्सेलरेट टू contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems. Again, to contribute to mutual trust, understanding and appreciation of one another's problems. This is very important कि एक दूसरे पर ये भरोसा करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हुए मिलकर उनका समाधान ढूंढें. ये भी एक ऑब्जेक्टिव है सार्क का. नेक्स्ट इज टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, social, cultural, technical and scientific fields. To promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields. Next is to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interest. To strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interest. Next, to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes. उन organizations के साथ अच्छे संबंध रखें और कॉपरेट करें जिनके यही मकासद हों. यानी कि जो मकासद, जो ऑब्जेक्टिव्स सार्क के हैं, तो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के, उनके साथ भी अच्छा संबंध रखें अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं. एंड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क. सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक समिट्स का ताल्लुक है, 1985 से लेकर आज तक सार्क के कुल 19 समिट्स मुनक्किद हुए हैं. पहला समिट 1985 में ढाका में हुआ था और जो 19th समिट है वो 2016 में पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ. सार्क के इन 19 समिट्स की डिटेल आप अलग से हासिल कर सकते हैं. इन तमाम समिट्स यानी छोटी मीटिंगों का मकसद यही रहा है कि किस तरह एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और किस तरह उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जाए जो सार्क के लिए मुतय्यन हैं, जो अभी हमने बयान किए, ताकि सार्क हकीकी मानों में एक वाइब्रेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में उभर कर सामने आए और उसके और साउथ एशिया एक रीजनल यूनिटी बनकर दुनिया में अपनी एक इमेज बना सके. सार्क की आज तक की अचीवमेंट्स और रोल के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदा सूरत हाल और फ्यूचर रेलेवेंस के हवाले से हम इंशाल्लाह एक अलग क्लिप में बात करेंगे. शुक्रिया.